होगा because after 50 years of age we develop so many complications, diabetes, hypertension, heart failure, coronary artery disease, myocardial infarction that occurs usually after 50 years of age. So after 65 years the prevalence becomes exponential और 6 to 10% हो जाता है. So incidence of heart failure is lower in women as compared to men, right? And northern Europe में there is a lifetime risk of developing heart failure more in women. और ओवरऑल प्रेवलेंस बढ़ क्यों जाता है? बिकॉज यू हैव एमआई, वैल्वुलर हार्ट डिजीज, अरिथमिया एंड इनकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे हो गए. पहले तो ये कुछ होता तो सब मर जाते थे, राइट? अब तो पेशेंट को बचा लेते. अब किसी को एमआई हुआ उसका इजेक्शन फ्रैक्शन रह गया 25%, बट बिकॉज ऑफ गुड ट्रीटमेंट पेशेंट चल रहा है. आई हैव पेशेंट लास्ट 7 years के फॉलोअप में इन महात्मा गांधी, सो मेनी ऑफ देम जिसका हार्ट इजेक्शन फ्रैक्शन 10%, 15% जिंदा है अभी, right? So we have good treatment modalities. People have become aware. The medical facilities have gone to even smaller villages. So people are the mortality या जो age है वो बढ़ गई है. So we have the increase in this thing. Okay. So go through this. So we have last time as we discussed we have two kinds of heart failure. Commonly पहले क्या बोलते थे? ड्राई या वेट. हार्ट फेलियर में वैसे क्लासिफाई करते ड्राई या वेट, राइट? तो जो डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होता था उसको ड्राई बोल देते थे. जो वेट होता था जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा नहीं है तो और ज़्यादा कंजेक्शन होता था उसको बोल देते थे वेट, राइट? फिर वो हट गया. फिर डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, राइट? फिर उसको और मॉडिफाई करके वी हैव नाउ यूज द टर्म एवरी वन ऑफ यू हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन. क्लियर? And books में अभी नहीं आया, but we now have a term which says heart failure with mid ejection fraction, right? So reduced would be less than 30%, preserved would be more than 30%, between 40 and 50% is the gray area. So ideally books would say 30%, right? फिर बोलोगे ये 40 वाला कहाँ से बीच में है? So less than 30% is reduced ejection fraction, more than 50% is preserved ejection fraction, and in mid it will be mid ejection fraction. But for your knowledge, for everything, for practical purpose, you have heart failure with reduced ejection fraction and heart failure with preserved. समझ में आ गया यहाँ तक, right? So these are the etiologies for heart failure with reduced and preserved ejection fraction. So for your knowledge, मोटा मोटा जिनमें ejection fraction less than 40% होगा उसमें coronary artery disease, heart attack, myocardial infarction, क्रॉनिक प्रेशर ओवरलोड जैसे हाइपरटेंशन हो गया या ऑब्स्ट्रक्टिव वैल्वुलर डिजीजेज विच आर एक तो ना आधे बच्चों में आई एम किसने क्या बोला अभी किसी रूमेटॉइड किसने बोला ऑब्स्ट्रक्टिव वैल्वुलर डिजीज. आधे बच्चों ने क्या किया इस बार एग्जाम में हमारे सीनियर में अक्यूट रूमेटिक फीवर में क्वेश्चन आया. इतना सुंदर अक्यूट रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो नहीं करोगे कभी. 50% ऑफ तो इतना अच्छा लिखा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में उनको 10 में से 8 मार्क्स आ गए. तो अंडा आ गया क्योंकि क्वेश्चन है तो acute rheumatic fever, right? So what are the obstructive valvular heart diseases? अरे ऑब्स्ट्रक्शन कौन करता है? कितने तरह के होते हैं? वैल्वुलर हार्ट डिजीज दो ही कहते हैं. तो स्टेनोसिस होगा या रीजनरेशन है, बंद होगा या खुला होगा. तो जो बंद होगा वो ऑब्स्ट्रक्टिव करेगा, उनको क्या बोलते हैं? स्टेनोसिस. क्या हो जाता है? ऐसे कुछ हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं होगा तो नींद ही आ रही होगी. हाँ, you have a stenotic heart lesion, valvular lesion or a regurgitant. Alright, so the stenotic or the obstructive would cause more of a depressed ejection fraction. Chronic volume overload, regurgitant में भी होते हैं. Chronic lung diseases, cor pulmonale, question आता है cor pulmonale पे, so we'll discuss in the third one, right? And then इतना is important for you. And then some genetic disorders जो familiar hereditary cardiomyopathy होती है जैसे Chagas disease कहाँ होती है? ये क्वेश्चन आता है ना माइक्रोबायोलॉजी में करते कहाँ होता है? इंडिया में नहीं होता.
right? And then you have disorders of rate and rhythm. These are the depressed ejection fraction. For preserved ejection fraction with more than 50% जिसमें होता है, उसमें क्या होता है, hypertrophic cardiomyopathy, alright, और restrictive cardiomyopathy, infiltrative disorders जैसे sarcoidosis या एक होता है amyloidosis. ठीक है, फिर से समझो, जो वेंट्रिकल के वॉल को अफेक्ट कर देगा ज़्यादा, तो उसमें इन्फिल्ट्रेट कर देगा, उसका कंप्लायंस खत्म कर देगा. इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ द मायोकार्डियम लाइक अमाइलोडोसिस एंड सार्कोइडोसिस. ऑलराइट, इतना याद कर लो. या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है कभी कभी, तो फाइब्रोसिस हो जाता है उसमें. तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. और हाई आउटपुट डिसऑर्डर्स लाइक, बताओ हाई आउटपुट किसकी बात करेंगे ना, हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन, थायरोटॉक्सिकोसिस, फीवर, alcoholism, chronic anemia. These are the high output states. ये सबसे पूछते हैं क्वेश्चन बाय द वे. What are the hyperdynamic circulation or the hyper high output states? फिर से रिपीट करो, बताओ. chronic anemia, chronic, ये लिख लो, इधर पढ़ के भी नहीं बोल पा रहे हो. Thyrotoxicosis, fever, chronic anemia and AV fistulas. These are the high output states. All right? Okay. So we have question कैसे आता है? Define heart failure, etiopathogenesis. इसमें से anything could come. What is the definition? Define heart failure. Write the causes or the etiology of heart failure. Right? Or classification of heart failure, which we have already described as reduce or preserve ejection fraction. दो क्वेश्चन हो गए. तीसरा क्वेश्चन ये etiology. Right? So out of these whatever questions I am telling you, इसमें से कोई कोई छोटा सा पार्ट उठ के आ जाता है. Alright? So पैथोजेनेसिस. अब पैथोजेनेसिस ना आपको उसमें पढ़ाते हैं पैथोलॉजी में, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी साइंस एंड सिम्टम्स एक छोटा सा स्लाइड आई हैव पुट अबाउट दी पैथोजेनेसिस. सो व्हाट हैपेंस इज, इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर हार्ट फेलियर. ठीक है, एक बार हो गया तो प्रोग्रेस ही होगा अनलेस अंटिल यू डू कार्डियक रीमॉडलिंग, राइट? एंड दैट रीमॉडलिंग वी विल डिस्कस इन द ट्रीटमेंट पार्ट. ऑलराइट, सो देयर इज एन इंडेक्स इवेंट. कभी भी नॉर्मल हार्ट फेलियर, आदमी नॉर्मल है, सो इंडेक्स इवेंट होगा. इट कुड बी अक्यूट, जैसे एमआई हो गया, राइट? या फिर ग्रेजुअल हो गया, जो रीगर्जिटेंट, जो वैल्वुलर हार्ट डिजीज होते हैं, जैसे वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया किसी को. तो दीज आर दी क्रॉनिक ग्रेजुअल जो कॉज होते हैं. या फिर किसी को क्या हो गया, सार्कोइडोसिस हो गया, एमाइलोडोसिस हो गया, राइट? या हेरिडिटरी होता है जो कार्डियोमायोपैथीज होती है. ऑलराइट, so you have an index event which can be acute, gradual और hereditary. so कभी भी पैथोजेनेसिस आता है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत है. इतनी कहानियाँ लिख देते जिसमें उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है. so whenever in medicine, ये याद रखना, you have been asked about pathogenesis, तो make a good diagram और एरो बना बना के कुछ बना सकते हो. जैसे पैथोजेनेसिस में लिख दिया सबसे पहले ऊपर इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, फिर बना दिया एक इंडेक्स इवेंट. इट कैन बी, ये 4 लाइनें लिखनी होती है, इसमें समझ में आ जाता है कि बच्चे को पता है, राइट? एंड देयर इज दीज गुड डायग्राम्स इन हैरिसन और योर डेविडसन वेयर यू कैन यूज दैट डायग्राम इन दी पैथोजेनेसिस, नॉट फॉर हार्ट फेलियर बट फॉर एवरीथिंग. जब भी पैथोजेनेसिस पूछते हैं मेडिसिन में, मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग अ लाइन डायग्राम और सम काइंड ऑफ अ डायग्राम, तो आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट वुड बी देयर. ओके, तो इससे क्या हो गया, कोई एक इंडेक्स इवेंट हुआ, देन देयर इज अ डैमेज टू दी heart muscle and loss of functioning of the cardiac myocytes. Alright, and then what happens is, ये सब arrow है, and then what happens is there is a disruption in the ability of the myocardium to generate force, which is वही again heart failure with reduced ejection fraction. functional defect हो गया, right? structural हो गया and functional defect हो गया. आपका myocytes डैमेज हो गए, आपका जो कार्डियक मायोसाइट्स है विच आर फंक्शनिंग वो कम हो गए, तो वो उसको फिर कंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज अ फंक्शनल डिफेक्ट. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब आपका ये फंक्शनल डिफेक्ट हो जाता है तो एलवी रीमॉडलिंग शुरू हो जाती है. एलवी रीमॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एलवी मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, एलवी बोलूंगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल, ये समझ में, राइट? तो एलवी इज लेफ्ट वेंट्रिकल का रीमॉडलिंग. तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे
ये राज सिस्टम हो गया क्या आपका फार्मा में? ओके, कुछ अंडरस्टैंडिंग है ना उसके बारे में? तो वो यहाँ पे वी डिस्कस अबाउट दैट इन द नेक्स्ट डायग्राम. मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगी, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू मेक अ डायग्राम. ओके, सो एलवी रीमॉडलिंग शुरू हो जाती है. वंस दैट एलवी रीमॉडलिंग स्टार्ट, तो पेशेंट कैन रिमेन असिम्प्टोमेटिक फॉर ईयर्स टिल द टाइम अनदर इवेंट, कोई स्ट्रेस हो गया, दोबारा हार्ट अटैक हो गया या फीवर हो गया, वो प्रेसिपिटेट नहीं हो जाए. राइट, सो द पेशेंट वुड रिमेन asymptomatic because of the LV remodeling. Now transition from asymptomatic to symptomatic heart failure. Why is that? Because there is so much of neurohormonal, adrenergic, cytokine system which leads to a altogether different scenario of LV remodeling. So this is the diagram you have to make. So this is the diagram you have to make. ये आप सबके Harrison में से, and this is a very good diagram. So if you make this diagram in the pathogenesis and activation of neurohormones, it is good enough. तो जो चार पहले दिखा था वो वाला, and you make this diagram, right? अब इस डायग्राम को देखो और समझो. So you have this baroreceptor dysfunction. जब आपका हार्ट के मायोसाइट वो हुए, you have a baroreceptor dysfunction. It sends signal to the by afferent pathways to the vasomotor center. Now once the vasomotor center is activated, you have increase in sympathetic nervous system activity, right? It would increase your decrease your limb in the sympathetic nervous system active हुआ तो क्या होता है? तो आपका लिम्ब में फ्लो कम हो जाएगा, तो हाथ पांव ठंडे रहेंगे. तो हार्ट फेलियर के बेसिस से हाथ पांव ठंडे रहते हैं, जिनमें सिस्टोलिक डिस्फंक्शन होता है. फिर क्या है? इंक्रीज इन एंजियोटेंसिन 2 हो जाएगा, ठीक है. और ये लास्ट वाला इंक्रीज इन वेसोमोटर टोन. जैसे आपका एंजियोटेंसिन 2 बढ़ा, इट वुड इंक्रीज रेनिन एंजियोटेंसिन दोनों ऐसे आपस में ये रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है आपका, राइट. सो यू हैव डिक्रीज इन ब्लड फ्लो. क्या कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा? यू हैव अ डिक्रीज इन ब्लड फ्लो, तो आपका रीनल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. यू हैव इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन. एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन क्या करता है? जाकर उसके कुछ वो जो होते हैं रिसेप्टर्स, दे आर देयर इन द हार्ट, तो वो उधर खराब कर देता है. तो हार्ट फेलियर में एल्डक्टोन जो ड्रग होती है, व्हाट इज एल्डक्टोन? पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक. इट इज यूज्ड एज अ ड्रग फॉर एलवी रीमॉडलिंग, राइट. सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, फिर क्या होएगा? और स्वेलिंग आ जाएगी, एंड दिस कॉजेज एग्जैक्टली इडिमा. और वाटर रिजॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा. अब जैसे वाटर रिजॉर्प्शन बढ़ता है, सोडियम भी बढ़ता है, पर वाटर रिजॉर्प्शन इंक्रीजेज मच मोर एज कम्पेयर टू दी सोडियम. तो यू हैव हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया इन पेशेंट्स ऑफ हार्ट फेलियर. समझ में आया? ठीक है. तो ये वाला डायग्राम इज फ्रॉम दी हैरिसन एंड एवरीबॉडी शुड नो. घर जाना, अब मैंने तुम्हें बताया लास्ट टाइम अपने लैपटॉप अपने फोन पे हैरिसन डाउनलोड कर लो और make sure that you remember this diagram so that when the pathogenesis is asked, you just make this diagram and that would be okay, right? Okay. So this is the overview of left ventricular remodeling. Slightly difficult slide, but मैंने इसलिए डाल दी because ये चीजें इनमें change होता रहता है. Nothing much to understand. I think you all will go through this in your pathology class. So what is LV remodeling? This question will be asked, right? LV remodeling क्या होती है? So any change in the left ventricle का mass, volume, shape and composition after cardiac injury leading to abnormal hemodynamic condition, right? So changes mass, volume, shape and composition, right? So this is LV remodeling. Definition यही होती है, change in volume, mass, shape or composition of the heart which leads to hemodynamic or compromised changes. So what is there? There is a left ventricle wall की thinning हो जाती है and afterload. एक preload होता है, एक afterload होता है. कुछ पता है क्या होता है? Anyone? Very good. So you have afterload and you have preload. तो क्या होता है? पहले ही लेफ्ट वेंट्रिकुलर का थिनिंग हो रहा है, सिंपैथेटिक वो पढ़ा है ना डायग्राम, उसमें सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो गई, आफ्टरलोड भी बढ़ रहा है, राइट. फिर देयर इज अ मिसमैच.
So what happens is इस सबका there is a high end diastolic wall stress ECTs होती है which leads to hypoperfusion of the subendocardium. अब आपका ब्लड तो आना चाहिए ना भाई, सारी बॉडी को अगर ब्लड सप्लाई होगा तो हार्ट को भी तो ब्लड सप्लाई होना चाहिए. तो हार्ट की आर्टरीज क्या है, हार्ट व्हाट इज दी ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट, कॉर्नी आर्टरीज. तो क्या होगा अगर वेंट्रिकल रीमॉडलिंग हो रही होगी और थिनिंग हो रही होगी तो जो सब एंडोकार्डियल आर्टरीज हैं वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. एंड यू हैव again an acute event which further leads to remodeling. So this is a vicious cycle, right? So this was all about the pathology, pathogenesis, definition and everything. So यहाँ तक the important part was one, the definition, understanding the concept, the difference between systolic or diastolic or reduced and preserved ejection fraction to the etiopathogenesis, and something about the pathogenesis of heart failure. All right. And from here we will discuss about the signs and symptoms of heart failure. Every sign and symptom is important, not only from theory point of view but from the practical point of view as well. So cardinal symptoms are, one is fatigue and one is shortness of breath. Shortness of breath हमने पिछली बार describe किया था. So first we'll discuss about dyspnea. So what is dyspnea? इसी बात तो difficulty in breathing or shortness of breath, right? फिर यहाँ पे we will discuss about the NYHA classification, right? जो आप पढ़ के आए हो that was MRC. What we will discuss now is the NYHA classification. What are the what could be the causes of dyspnea in a patient of heart failure? बता, कुछ ऐसी सोच के बता. मल्टीफैक्टोरियल मैं बता देती हूँ, बाकी बताना शुरू करो. इट्स वेरी सिंपल. जो अभी हमने पैथोजेनेसिस डिस्कस किया है उसी की वजह से हो. Very good. Pulmonary edema, right? One is your pulmonary artery hypertension और pulmonary edema. इतना कॉन्सेप्ट सबको पता होना चाहिए कि एलवी काम नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ एनीथिंग, चाहे उसमें फिलिंग नहीं हो रही है, चाहे उसमें कंस्ट्रिक्शन नहीं हो रही है, वो एलए में ब्लड प्रेशर देगा. एलए क्या करेगा, कंजेस्ट कर देगा लंग्स को. पल्मोनरी आर्टरी और वेन का क्या काम है, कौन बताएगा? कौन? वेन ब्लड में हार्ट में ब्लड लाती है, और आर्टरी क्या करती है? हाँ, लेफ्ट एट्रियम में क्या आता है? लेफ्ट एट्रियम में वेन आ रही है, पल्मोनरी वेन आ रही है. ओके, आर्टरी कहाँ जा रही है? लंग में जा रही है. फिर वो जैसे राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर लंग्स में गई. फिर क्या हुआ? फिर एक कैपिलरी बना, नेटवर्क बना, फिर वो उसने वेन बनाई और ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट एट्रियम में. अब क्या होगा? अब रिवर्स सोचो. प्रेशर हो गया, फिर प्रेशर हो गया. अच्छा, होमवर्क. चारों वेंट्रिकल्स में, दोनों एट्रिया दोनों वेंट्रिकल्स में कितना प्रेशर रहता है उसका हमको मुझे बताना है. ठीक है, इसको अपनी साइड में हम रखना एक बार. रेड रेड जाता है. हाँ नहीं बेटा, आपके पीछे. हाँ, व्हाट इज द प्रेशर इन लेफ्ट वेंट्रिकल? इसका तो बताओगे. प्रेशर इन लेफ्ट वेंट्रिकल. वेरी गुड. सिस्टोलिक प्रेशर वुड बी, आयोटा में इतना प्रेशर ना, कितना नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है? तो इट्स अ रेंज, राइट, फ्रॉम 100 to 120. तो कम से कम वेंट्रिकल में सिस्टोलिक प्रेशर इतना होना चाहिए कि आयोटा में ब्लड कर दे. ब्लड को जाना भी तो ना, ये तो प्रेशर तो इतना होना चाहिए. और डायस्टोलिक 0 क्यों नहीं जाता?
जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? कि बेसलाइन प्रेशर फिक्स करना, पढ़ के आना सबको, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड हीमोडायनामिक्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे सिस्टोलिक में, डायस्टोलिक में तो हार्ट के वेंट्रिकल्स और चेम्बर्स में उतना कितना प्रेशर होगा। वेरी बेसिक क्वेश्चन है ना, तभी आपको पता लगेगा कि पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में कितना। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे फिर? कितने ब्लड प्रेशर को बोलेंगे, राइट? और हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं नॉर्मल क्लासिफिकेशन? 142 हुआ तो बीपी हो जाएगा, बीपी हो जाएगा 142 पे। 152 हुआ तो 148, 139, डायस्टोलिक 99 हुआ तो। अभी तुम्हारी हाइपरटेंशन की क्लास में बात है, बट इतना बेसिक, वंस यू नो अबाउट दी डायनेमिक्स ऑफ द हार्ट इट विल बी इजियर फॉर यू टू। नेक्स्ट क्लास शायद तुम्हारी हाइपरटेंशन की होगी, मैं ये हाइपरटेंशन डॉक्टर करना चाहिए, राइट? So you should know about the hemodynamics of the heart. So the dyspnea causing one she told, और बताओ, let's see. So it could be multifactorial. One is pulmonary congestion. So how does the pulmonary congestion occur? This accumulation of the interstitial fluid. It activates the, so once you have dyspnea क्यों होता है? So this is the pathophysiology, but dyspnea हुआ क्यों? So this is how it happens. So you have pulmonary congestion, then there is a, ये ना ऐसे arrow है, ये मेरे को बनाना नहीं आया. So you have pulmonary congestion, and then it leads to accumulation of interstitial fluid or intra-alveolar fluid, right? प्रेशर ज़्यादा हो गया ना, तो फ्लूइड कहाँ जाएगा? एल्वियोलर कैपिलरी से निकल के उसमें आ जाएगा एल्वियोलाई में, राइट? जब वो एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई समझ रहे हो ना किसको बोल रहे हो, राइट? सो इफ यू हैव, आपका एल्वियोलाई है, उसके चारों तरफ ये घूमती है वेन्स एंड ब्लड सप्लाई रहती है. So once the pressure is high in the pulmonary veins and pulmonary artery, so you have a exudation of fluid into the alveolar area, and then it activates the J receptors, and then there is a, and it stimulates the brain, and then you have rapid shallow breathing which is characteristic of कार्डियक डिस्निया. कभी पेशेंट को देखना, अभी आईसीयू में जो एडमिट होते हैं ना, उन पेशेंट्स को कैसे ब्रीथ करते हैं, देखते ही पता लग जाएगा दैट पेशेंट इज एन हार्ट फेलियर. वन, राइट? उसके बाद क्या है? देयर इज अ रिडक्शन इन पल्मोनरी कंप्लायंस. इतने दिनों तक यू हैव दिस क्रॉनिक चेंजेस. तो जैसे हार्ट में रीमॉडलिंग होती है, वैसे पल्मोनरी फ्लो में भी रीमॉडलिंग होती है. देयर इज एयरवे रेजिस्टेंस आफ्टर लोड. सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो रही, यू हैव एन इंक्रीज इन एयर रेजिस्टेंस. ये एयरवे भी है, आफ्टर लोड भी बढ़ जाता है. एंड देन यू हैव फटीग. इतनी देर से सांस लोगे, क्रॉनिक में भी यही है और अक्यूट में भी यही है, क्योंकि जिस पेशेंट को हार्ट फेलियर, इवन इफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर, वो तुम्हारी तरह नहीं चलेगा. इसने क्या बताया था, थोड़ा सा चलने पे थक जाते हैं ना. सो दिस हैपेंस हियर आल्सो, कि यहाँ से वहाँ तक चढ़ा, सो ही हैज टू वर्क मोर एज कम्पेयर टू दी अ नॉर्मल पर्सन फॉर ब्रीदिंग, राइट? सो ही गेट्स फटीग एंड देन इज अनीमिया. एनी क्रॉनिक डिजीज वुड लीड टू अनीमिया. सो dyspnea is multifactorial in a patient of heart failure. Now this is your NYHA classification. इसमें और MRC में थोड़ा सा डिफरेंस है. So you have 4 classes here, right? इसमें ग्रेडिंग नहीं होती, इसमें क्लास होती है. So NYHA class 1, 2, 3 and 4. Now the underlying thing is that the patient should have cardiac disease. ठीक है? So every patient with सब पढ़ लो 1, 2, 3, 4. सब में the line starts with patient has cardiac disease. Alright? Now उसके बाद शुरू होता है but there is no limitation of physical activity. So class 1 is patients having cardiac disease, but there is no limitation of physical activity. 0 होना चाहिए था, but NYHA starts from 1, 2, 3 and 4. So
ordinary physical activity does not cause fatigue, palpitation, dyspnea और angina. आपसे पूछते हैं व्हाट आर दी इक्विवेलेंस ऑफ अंजाइना. अंजाइना इक्विवेलेंस मतलब किसी को चेस्ट पेन नहीं हुआ पर फिर भी तुमको लगता है ये पेशेंट को कॉर्नी आर्टरी डिजीज है. व्हाट आर अंजाइनल इक्विवेलेंस? पैल्पिटेशन, फटीग, डिस्निया, चौथा सिंकोप होगा. पिछली बार मैंने बताया था. सो ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी डज नॉट कॉज, चार चीजें याद रखनी है, ये फटीग, पैल्पिटेशन, डिस्निया और एंजाइना. तो चारों में कॉमन क्या है? स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज. 1 राइट. 2 चार सिम्टम्स देखने, फटीग, पैल्पिटेशन, डिस्निया, एंजाइना. राइट. सो फर्स्ट पेशेंट को कुछ भी नहीं हो रहा. सेकेंड इज स्लाइट लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. थर्ड इज मार्क्ड लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मतलब लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी. जैसे नहाना फॉर हिम वुड बी लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी होता है ना, लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी पे. खाना बनाना इज ऑर्डिनरी एक्टिविटी. मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, आई एम क्लास 1. दूसरे आदमी को वो उसने खाना बना, बाहर गया बाजार से सामान लेने, उसी में उसको डिस्निया हो रहा है. दैट इज क्लास 2, स्लाइट लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. 3 इज घर में खाना बना रहा है, नहा रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसमें उसको ये चारों में से कुछ हो रहा है. सो दैट इज क्लास 3. एंड 4 इज बैठे बैठे भी डिस्निया हो रहा है. राइट. बैठे बैठे भी द रेस्पिरेटरी रेट इज हाई. सो दैट इज क्लास 4. अंडरस्टूड? So there is a structural heart disease. You have to see 4 signs and symptoms. And what are they? ऐसे याद करो, कोई निमोनिक में आता है PDAP ऐसे कुछ नहीं. ठीक है. पैल्पिटेशन, फटीग, फटीग, पैल्पिटेशन, डिस्निया एंड एंजाइना. आप कुछ अपना निमोनिक बना दो. These are the 4 symptoms and signs which you have to evaluate. 1 no restriction. 2 less than slight limitation. Right. Third is less than फिजिकल मतलब नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी. एंड 4 इज एट रेस्ट. तो 0 एंड 4 तो सबको याद हो जाता है, एट रेस्ट और नो लिमिटेशन. 2 और 3 में मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया. बाजार तक भी जाएगा, कुछ भी करेगा, उसको वो हो जाएगा. दैट इज नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी. स्लाइटली लेस देन उस पर हो जा रहा है, उस 2 होगा. और 3 इज घर के काम करने में, नहाने में भी, खाना बनाने में भी अगर उसको हो जाए तो दैट इज मार्क लिमिटेशन ऑफ नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी. अंडरस्टूड? सो दिस इज NYHA क्लासिफिकेशन. What is orthopnea? Orthopnea is dyspnea on lying down. Very, very important characteristic of heart failure. Right? So orthopnea is dyspnea in the recumbent position or lying down position. लेट ही नहीं पाता है. आपको ये पूछना है कि लेट के सांस फूलती है क्या. एंड दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्थोपनिया ऑफ मतलब dyspnea of cardiac and respiratory symptoms. Understood? So जब आपसे कोई पूछेगा how would you differentiate between dyspnea of cardiac and respiratory? So chest pain is more in patients of heart diseases. Second, orthopnea is a characteristic feature of heart patients. PND is a characteristic feature of cardiac patients. Cough is a predominant symptom of respiratory. Right? फिर भी orthopnea can be there in patients of advanced COPD. Understood? तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि और किसी को COPD एक्यूट एक्सेलरेशन हुआ, वो तो लेटा, वो नहीं लेट पा रहा तो उसके साथ साथ हार्ट अटैक भी हो गया. नो. तो एनी एडवांस COPD अगेन कैन हैव orthopnea. ऑलराइट? समझ में आ गया? What why is there orthopnea? भी पूछते हैं orthopnea क्यों होगा. अच्छा, हम बैठे हैं, क्या हो जाता है बैठ के? सोचो, आपका लंग है पूरा फ्लड है. सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? नीचे से. राइट? आप लेटे हुए हो तो एयर पूरा आपका वो कंजेस्टेड है पूरा बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर. अब आप लेटे हुए हो तो एयर, ये आपका ऐसे है. दी लंग्स हैव टू एक्सपैंड. कैसे एक्सपैंड करेंगे? और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. अगर आप बैठे हुए हो तो बिकॉज इट इज एयर, तो एटलीस्ट अपर जो एयर भी होगा पार्ट होगा उसको अच्छे से वो क्या कर देगा,
एयर कहाँ जाएगी, ऊपर अच्छे से जाती है। और जो एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड होता है हार्ट फेलियर में कैसा होता है, बेसिस पे और पैराहाइलर, राइट। तो अगर आप बैठे हुए हो तो अपर एयरवे विच इज मोर और लेस स्पेयर्ड, तो एयर को उसको एरेशन में थोड़ा बहुत फायदा होगा। सो द पेशेंट ऑफ हार्ट फेलियर ऑफन प्रेफर्स टू सिट डाउन, बैठ के उसको ठीक लगता है, जैसे ही आप उसको लेटाते हो उसको और कंजेशन हो जाता है। सो दिस इज ऑर्थोपनिया, दैट डिस्निया ऑन दी लाइंग डाउन पोजिशन। ओके, इसमें नॉक्टर्नल कफ भी होता है। तो जैसे पेशेंट लेटता है उसका ऐसा लगता है जैसे मैं लेटता हूँ मुझे खांसी आ जाती है, वो इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट का कंजेशन बढ़ जाता है, तो उसको खांसी शुरू हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज नॉक्टर्नल कफ विच इज मोर और लेस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हार्ट फेलियर पेशेंट। जिन पेशेंट्स में एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है और असाइटिस होता है, राइट। अच्छा, ये और किस किस में ऑर्थोपनिया, जो डीडी है लास्ट वाला था पेशेंट्स, और कौन से वाले पेशेंट्स ऑर्थोपनिया कंप्लेन कर सकते हैं, जिनको मैसिव असाइटिस हो या जो ओबीज हो, वो भी जब लेटते हैं तो लंग को एक्सपैंड करने की जगह नहीं मिलती है, राइट। तो उनको भी ऑर्थोपनिया आता है। तो एब्डोमिनल ओबेसिटी एंड मैसिव असाइटिस, अदरवाइज ऑर्थोपनिया इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हार्ट पेशेंट। PND, how do you differentiate between orthopnea and PND, right? This is also asked. What happens is PND में क्या होता है, पेशेंट सो गया, ऑर्थोपनिया नहीं है उसको, वो आराम से सो गया, एक दो घंटे बाद वो उठेगा और उसको ऐसे लगेगा कि मैं उठ के, कैरेक्टरिस्टिकली ऐसे ही बोलता है कि मेरा मन करता है मैं उठ जाऊं, खिड़की के पास जाऊं और सारी खिड़कियां खोल दूं। हमारे पास एक पेशेंट एडमिट था अभी 2-3 दिन पहले, बाबा क्या कहता था, मेरा मन कर रहा है मैं छत पे भाग जाऊं, जैसी रात होती है मेरा मन करता है मैं छत पे चला जाऊं। तो वो क्या कहना चाहता है, छत पे क्यों जाना चाहता है, बिकॉज ऑफ दैट एयर हंगर। So this is known as paroxysmal nocturnal dyspnea, right? It occurs usually in the night after 1 to 3 hours of sleep, and there are acute episodes of severe shortness of breath. It may manifest as cough or wheezing. Why is it there? Because there is an increased pressure in the bronchial artery also, which leads to airway compression and increase in interstitial pulmonary edema and increase in airway resistance. Now cardiac asthma, इसमें हार्ट फेलियर में कार्डियक एस्थमा भी एक टर्म होती है, राइट। तो नॉर्मली पेशेंट्स को क्या लगता है, हमको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि इस पेशेंट को जो अस्थमा है इसे ब्रोंकियल अस्थमा और कार्डियक एस्थमा। तो जो PND ऑर्थोपनिया की हिस्ट्री देगा दैट इज करेक्ट, मोर इन फेवर ऑफ कार्डियक एस्थमा। तुमने टेस्ट सुना, वीजिंग तो दोनों में आ रहा है, डिस्निया पेशेंट दोनों में बोल रहा है, बट व्हेन यू ऑस्कल्टेट यू हैव वीज। एंड हाउ वुड यू डिफरेंशिएट कि ब्रोंकियल अस्थमा है कि कार्डियक अस्थमा है, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, right? So a patient of cardiac asthma would give you a history of orthopnea and PND. Understood? So these are the terms: dyspnea, orthopnea, PND, cardiac asthma. All right? Nocturnal cough. ये सब important चीजें हैं. A patient who has advanced heart failure. Now this is the shallow breathing. ये patient खुद ही complain करेगा. Time stroke respiration usually is a sign we observe, but there are patients who will complain. So this is a cyclic or a periodic respiration, right? So 40% of the patients with advanced heart failure would, in any time in life, would have this kind of specific respiration. और ये it is there because of the increase in the sensitivity to the respiratory center. Now what happens is there is an apneic phase. रात को पेशेंट सो गया, सांस ठीक से आने का, उसको एपनिया हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही पेशेंट को एपनिया होता है तो CO2 वॉश आउट नहीं होती, तो आर्टीरियल CO2 होल हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, राइट। तुम सांस लेना कम कर दोगे या बंद कर दोगे, शैलो ब्रीदिंग हो जाएगी, तो योर ऑक्सीजन तो वॉश आउट नहीं हो रही, वो एक्यूमुलेट होती है, तो ऑक्सीजन तो उतनी रह जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। So what then happens is that it stimulates the respiratory center and you have a hyperventilation and hypocapnia. ठीक है, ऐसे हो जाएगा, तेज से सांस लोगे, शैलो ब्रीदिंग होगी, तेज तेज लोगे टू वॉश आउट दैट कार्बन डाइऑक्साइड, फिर पेशेंट हो जाएगा और फिर देयर विल बी अ रिकरेंस ऑफ एपनिया। ठीक है, सो दिस इज द टाइम स्ट्रोक रेस्पिरेशन व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्ट फेलियर। अदर सिम्टम्स क्या होते हैं,
अदर GI symptoms would include, ये important है, हार्ट फेलियर का पेशेंट कैन प्रेजेंट टू यू विद जॉन्डिस ऑल्सो, एंड व्हाई इज दैट, बताओ क्या बोलते हैं, मेरे को कुछ भी खाता हूँ मेरा पेट फूल जाता है, कुछ भी खाता हूँ मेरा पेट भर जाता है, मैं कुछ भी खाता हूँ मुझे भूख नहीं लग रही है, मेरा पेट हमेशा से फूला हुआ रहता है, वाई, उसको ना मैं बताएगा, बेटा बताओ, मैं लास्ट दिन से ही पूछती हूँ, बताओ। वेरी इजी, you have because of right sided heart failure, left sided heart failure or right sided heart failure or IVC, and you have a congestive hepatomegaly, such an important feature of heart failure. राइट साइड टेंडर हिपैटोमेगली की कॉजेज पूछेंगे तो तुमसे, तो तुम बता दोगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट, यू विल हैव अ कंजेस्टिव हिपैटोमेगली, राइट। अब जब तुम्हारे लिवर इनलार्ज है, टेंडर है, कंजेस्टेड है, यू विल हैव एन इंक्रीज इन बिलीरुबिन, यू विल हैव एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, दर्द रहता है यहाँ पे, टेंडर हिपैटोमेगली है, राइट, fullness of abdomen. So these are the GI symptoms which are related to heart failure, right? Now there would be a congestion of the liver, it leads to the stretching of the capsule and right upper quadrant pain. Other symptoms, ये other symptom में GI हो गया, cerebral symptoms would include confusion, disorientation and sleep and mood disturbances, right? Because आपका apnea का spell हो रहा है, आप confused जाते हो, drowsy जाते हो, so heart failure patient will experience this also, and nocturia, right? So important features are dyspnea, orthopnea, PND, kind stroke respiration, ये पूछेंगे ना आपसे what are the signs and symptoms of heart failure, तो ये लिखना है, and other symptoms में GI and cerebral, alright. Now come the physical examination. So what happens is the cardiac examination is not very so in what will happen in general physical examination of a patient of heart failure, क्या दिखेगा, अगर माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट फेलियर होगा तो आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में नहीं दिखेगा, एट रेस्ट, आप एग्जामिन कब करोगे पेशेंट को, व्हेन ही इज एट रेस्ट, तो ऐसे पेशेंट में बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस नहीं दिखेगा। सिवियर हार्ट फेलियर में द पेशेंट वुड बी सिटिंग अपराइट क्योंकि उसको ऑर्थोपनिया होगा, टेकिपनिक होगा, एंड ही विल नॉट बी एबल टू फिनिश वन कंप्लीट सेंटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन रेस्पिरेटरी एज वेल एज हार्ट फेलियर पेशेंट, दैट द पेशेंट इज नॉट एबल टू कंप्लीट वन सिंगल सेंटेंस, ऑलराइट, तो ये this will show that the patient has heart failure. What happens to the blood pressure? It may be normal or high. अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है उसकी वजह से हार्ट फेलियर तो ब्लड प्रेशर वुड बी हाई, अगर सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हो गया, रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, तो ब्लड प्रेशर माइट बी लो, सो इट कैन वेरी फ्रॉम नॉर्मल टू लो टू हाई, राइट। देन पल्स प्रेशर, दो चीजें पढ़नी ना, एक तो पल्स प्रेशर सब पढ़ के आएंगे, दो चीजें बोली ना पढ़ने को, एक तो कार्डियक हीमोडायनेमिक, किसमें क्या प्रेशर रहता है, एंड द सेकंड इज दी पल्स प्रेशर, so pulse pressure would be low. Sinus tachycardia again is the non-specific sign, and peripheral vasoconstriction बढ़ा दिया था, it will lead to cool extremity. So this is there in the general physical examination. The patient would be tachypneic, diaphoretic, sweating हो रही होगी उसको, distress में होगा, right, in severe heart failure, and blood pressure, BP, pulse pressure, saturation, right, this all you have to monitor. Now what happens to the JVP? So you have to examine the JVP. Everybody would go home and see a YouTube video on how to examine JVP, right? Very important. कैसे करना है आपको? आपको patient it is best appreciated when the patient is at 45 degree, right? Best examine, all right? तो patient comfortable होगा, rest पे होगा, 45 डिग्री पे, बेड आप ऊपर नीचे कर दो, और अगर बेड आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते तो यू कैन जस्ट यूज योर हैंड, उसको 45 डिग्री पे लाना, उसका गर्दन ऐसे एक्सटेंड करा के यू पुट अ टेंजेंशियल लाइट हियर, ये तो दिखेगा नहीं, एंड देन यू विल सी दी पल्स, राइट, सो यू एग्जामिन दी पल्स, एंड व्हाट डू यू मॉनिटर इज दी प्रेशर, आपने यहाँ पे उसकी पल्स देखी है, वेव फॉर्म देखनी है,
you examine the jugular vein, and you see the waveform, and what do you monitor is the pressure, right? So how do you monitor? जहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिखेगा उसका वेवफॉर्म, the upper end of the JVP, वहाँ से एक स्केल up till sternum, ये यहाँ पे एक स्केल, जो जितना आएगा आपको उसमें 5 ऐड कर देना है. That would be in centimeter of water, right? That would be your JVP. ऑलराइट, समझ में आया? नहीं आया? आया ना? 45 डिग्री पे आपने पेशेंट को कर दिया ऐसे इंक्लाइन, ये पेशेंट है आपका, ठीक है, मैं पेशेंट, फिर आपने इसमें नेक पर टर्न किया एंड ये आपकी ये जो है जुगनल वेन आपको इसमें टर्न भी देखो, इंटरनल वेन, और राइट में देखो कि लेफ्ट में देखो, चौबीस नंबर राइट साइड, तो ये डायरेक्टली आती है उसका राइट एट्रियम में इसमें जाती है, दिस इज मोर कन्वीनियंट फॉर दी प्रेशर ऑफ दी राइट एट्रियम, राइट? आपने उसका 45 डिग्री पे किया, पोस्ट किया, एंड देन यू सी दी वेव फॉर्म भी तो देखोगे ना, जहाँ पे सबसे ऊपर आपको अपर एंड दिखेगा ऑफ दैट इम्पल्स, जो भी वेव फॉर्म जो अपर एंड दिखेगा, वहाँ से आपको एक स्केल आना है ऐसे, राइट? जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है, एक स्केल ऐसे आएगा, दूसरा स्केल यहाँ से स्टर्नम तक आएगा, राइट? ये आपने मेजर कर लिया, सपोज ये है 4 सेंटीमीटर, इसमें +5 करोगे तो जुगुलर वेनस प्रेशर कितना होगा? 9 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. So this is how you will examine, right? Or everybody would go home and see video of how to see the waveform and how to monitor the pressure, right? अब कौन सा सिस्टम हम एग्जामिन करेंगे? we'll examine the pulmonary system or the respiratory system. तो इसमें कुछ नहीं है, आपको कैरेक्टरिस्टिक यू विल फाइंड रेज और क्रैकल्स, राइट? एक्सटेंसिव होंगे, बायलेटरल होगा, और जितना नीचे होगा उसका मतलब जितना ऊपर तक होगा, इफ इट इज इन्वॉल्विंग मोर देन 2/3 ऑफ द लंग, पीछे आप ऑस्कल्टेट करोगे, आगे आप ऑस्कल्टेट करोगे, राइट? जितना ऊपर तक होगा इसका मतलब इट इज इन्वॉल्विंग लेस देन 1/3, मोर देन 1/3, 2/3 ऑफ द लंग, राइट? अब 2/3 ऑफ द लंग में आपकी क्लेफ्ट सुनाई दे रही है, इसका मतलब पेशेंट इज इन सीवियर हार्ट फेलियर, ओके? अगर प्लूरल effusion डेवलप हो जाएगा, it can lead to pulmonary congestion, can lead to what? Exudation fluid in the alveoli, so you will have either bronchi, ये रेल, इसको क्रैकल भी बोलते हैं, और you can have, अगर effusion हो जाएगा तो there would be diminished or absent breath sound, alright? Cardiac examination is not very informative in patients of heart failure. तो cardiac examination में आपको क्या क्या मिलता है? S3 मिल जाएगी, S4 मिल जाएगी. You have to go home and read about S3 and S4. S3 third heart sound, S1 S2 तो सबको पता है ना. So what is S3 and what is S4? One is because of the pressure overload, one is because of the volume. आपको डिफ्रेंशिएट करना है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑस्कल्टेट, सुनाई कम देता है, बट S3 S4 आपको अप्रिशिएट करना आना चाहिए, एंड यू शुड नो वो क्यों प्रोड्यूस होते हैं, राइट? सो यू गो होम एंड रीड अबाउट S3 and S4. हार्ट फेलियर में कभी कभी अगर आपका हार्ट डायलेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सो यू कैन सी नॉर्मली एपिकल इम्पल्स कहाँ होती है? दम हो जाता है एकदम, कहाँ होती है नॉर्मल एपिकल इम्पल्स? तुम तो बता दो पूरी क्लास में, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. हाँ, राइट में होती है, नहीं पता? हाँ, किसी ने फोर्थ स्टेज बोला, किसने बोला? फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस वेयर? राइट साइड, लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड पक्का, राइट में नहीं है. हाँ, हार्ट तो लेफ्ट में है ना, वो लेफ्ट में ही होगी, अनलेस में आप लेफ्ट को काट दिया. Usually the apical impulse in fifth intercostal space just medial to the mid clavicular line. इतना तो सबको पता होना चाहिए बच्चे, किस सेमेस्टर में आ गया वो. दिस वाज रियली बैड बाय द वे, राइट? तो अगर आपका हार्ट डायलेट हो गया और नीचे आ जाता है या बड़ा हो जाता है, तो ऑब्वियसली द अपिकल इम्पल्स इज आल्सो शिफ्ट. तो अगर रिगर्जिटेंट लीजन है तो इट वुड बी डाउन एंड आउट, ऑलराइट? सो द कार्डियक एग्जामिनेशन वुड नॉट गिव यू मच एक्सेप्ट apical impulse shift हो जाएगी, and you can see S3 and S4. Other symptoms, other systems बताओ.
अब सबसे इम्पोर्टेंट बताओ, बताओ अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स विच वी कैन एग्जामिन. हार्ट फेलियर, लिवर को क्या हो जाएगा? ओके, वन इज जॉन्डिस. वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस नाउ. पढ़ती भी नहीं बोल रही, अभी तो पढ़ाया है. मैं लिवर की बात कर रही हूँ. स्कीन कहाँ से आ गई? कैसी हिपैटोमेगली होगी? टेंडर हिपैटोमेगली. टेंडर हिपैटोमेगली वो कुछ बेसिक ही तो है ना इसमें. टेंडर हिपैटोमेगली के कॉजेज क्या क्या होते हैं? वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और लिवर एब्सेंस. राइट, सो यू हैव टेंडर हिपैटोमेगली. ये साइन की बात हो रही है, राइट? सिम्टम्स नहीं हो रहे. पेशेंट बोलेगा मुझे दर्द हो रहा है. यू आर एग्जामिनिंग. सो वन यू हैव टेंडर हिपैटोमेगली, राइट? जॉन्डिस, टेंडर हिपैटोमेगली, दो चीजें. और पेरिफेरल एडिमा इज सच अ कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट फेलियर. पेशेंट आता ही ऐसे कि मेरे पाँव में सूजन आ रही है. एंड वन ऑफ द मोस्ट important reason is heart failure. And then you have cardiac cachexia and chronic heart failure. Alright? Diagnosis we'll discuss next time. So this is the definition, pathogenesis, etiology, LV remodeling and signs and symptoms of heart failure.